Good morning, students. Today I am going to start your next poem from your Hornbill textbook, Childhood, poet named Marcus Matain. Before starting the poem, I am just going to give you a general introduction and a brief summary of this poetry. Childhood is written by Marcus Matain. In this poem, the poet thinks over his lost childhood. He wonders about the moment where he lost the innocency and realized that the world is not what he seems it to be. He recalls when his thought changed and he realized the hypocrisy of the people around him. He finally settled down to the idea that his childhood went to some forgotten places and is hidden in the face of an innocent infant. So, a short summary of this poem. In this poem, the poet wonders when he lost his childhood and the innocence he had. When he lost both things, his childhood and the innocency, he became conscious that he no longer see the world as he did earlier, and he can sense the hypocrisy in people. He recalled many instance in his life when he could have lost his childhood. He wondered if was the day he ceased to be 11, or he realized that the hell and heaven did not exist in the world and no one could find them in the geography. And next what he says, he talks about the possibility when he realized that adults are not what they seems to be and they are hypocrites. They talk and preach about love, but their action don't say so. Was it the day when he realized that his mind was his own and capable of producing his own thoughts? No one could own that, and he is an individual with his particular personality. In last stanza, he talks about the whereabouts of his childhood. He concludes that it had gone to some forgotten places. It can only be found in the innocent face of an infant. Now, I am going to read the stanza and give you the explanation of the stanza. First stanza. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? Now, the word ceased here means come to an end. In the above lines, the poet wonders about when his childhood came to an end. He asked himself, was it the day he was no longer 11 years old? Was it the day when he realized that hell and heaven existed and yet could not be found in the geography or on the map? He realized they are imaginary places, they actually do not exist in the world. What the poet says here, यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं? इस पोइट्री में पोइट अपनी चाइल्डहुड को ढूंढ रहे हैं, अपने बचपने को ढूंढ रहे हैं. वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या मैंने अपना बचपना कब खोया? जब मैं 11 साल का पूरा हो चुका था तब, या फिर जब मैंने ये जाना कि हेल और हेवन ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये हमारी सिर्फ कल्पनाएं हैं, ये कोई ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया जाता, ना कोई किसी मैप में इसे दर्शाया जाता है. क्या उस समय जब इन चीज़ों के बारे में तर्क करना जाना, तब मेरे को पता चला कि मैंने अपना बचपना खो दिया है. वो अपने बचपने को ढूंढ रहे हैं. यहाँ जो पोएट है वो तर्कवाद जब बन गए थे तब वो सोच रहे हैं क्या था उस समय, क्या मैंने अपना बचपना खो दिया था या फिर किसी और समय. इसी तलाश में इस पोइट्री में वो लिखते हैं, व्हेन डिड आई लॉस्ट माई चाइल्डहुड? वॉज दैट द डे? क्या वो दिन वो था जब मैंने ये डिफ्रेंशिएट करना सीखा? इस फर्स्ट स्टैंजा में बता रहे हैं कि जब मैंने समझा कि हेल और हेवन सिर्फ एक इमेजिनरी प्लेसेस हैं, एक्चुअली वो ये इस वर्ल्ड में कहीं होती ही नहीं है. क्या वो दिन वो था जब मैं पूरा 11 साल का हो चुका था, तब मैंने अपना बचपना खो दिया? ऐसे यहाँ पे पोएट इस फर्स्ट स्टैंजा में हमें बता रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब उन्होंने अपना बचपना खो दिया. नेक्स्ट स्टैंजा. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seems to be? They talked to love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day?
पोइट यहाँ पे अब इस स्टैंजा में क्या कह रहे हैं, यही वापस पूछ रहे हैं, क्या मैंने कब खोया अपना बचपना? क्या वो उस समय था जब मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं बड़ा हो गया, मैंने ये जाना कि लोग जैसे बोलते हैं, जैसे दिखते हैं, वो एक्चुअली वैसे काम करते नहीं हैं। प्रीच में तो हमें बताने के लिए, कहने के लिए वो कहते हैं कि ऐसे प्रेम से, सद्भावनाओं से रहना चाहिए, मगर उनके कार्य में वो चीज़ें झलकती नहीं हैं। लोग दिखाने के कुछ और होने के कुछ और होते हैं वास्तविकता में। क्या उस समय, उस दिन जब मैंने ये एहसास जाना, उस दिन मैंने पहचाना, तब मुझको पता चला कि क्या मैंने अपना बचपना खो दिया है? क्या वो दिन था? यहाँ पे पोएट स्टैंजा में ये बताना की कोशिश कर रहे हैं। प्रीच मीन्स यहाँ पे वर्ड मीनिंग है टॉक या स्पोकन। यहाँ पे इंग्लिश एक्सप्लेनेशन वापस, इन द अबाउट स्टैंजास द पोएट अगेन रिपीट्स द सेम क्वेश्चन अबाउट व्हेन डिड हिज चाइल्डहुड गो। ही वंडर्स अबाउट that the day when he started seeing the world with a new perception, that adults are hypocrites and are not how they seem to be. The adults who talked of love and preached of love and yet never behaved so lovingly. They are double-faced in reality. Was that the day when his childhood go? इंसान दोहरी ज़िंदगी जीता है। क्या उस दिन जब उन्हें पता चला कि इंसान के दो रूप होते हैं, बाहरी दुनिया के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और, क्या तब मैंने अपने बचपना खो दिया? पोएट जब इन चीज़ों के बारे में तर्क करना शुरू किया, जानना समझना शुरू किया, जब वो बड़े होने लगे, युवा बनने लगे, क्या उस समय जब उसकी तर्क शक्ति उनकी बढ़ गई, तब उन्होंने क्या अपना बचपना खो दिया था? या पोएट वापस वही क्वेश्चन दोबारा से स्टैंजा में पूछ रहे हैं, कुछ अलग दुनिया देखने के नज़रिए से, लोगों के नज़रिए से, लोगों के दोहरे चेहरे से वो आकलन लगा रहे हैं कि क्या तब मैंने उस समय अपने बचपने को खो दिया था, जब मैंने जाना कि दुनिया दो तरह की होती है, बाहरी लोगों के लिए दिखाने और सिखाने के लिए कुछ और अपने कार्य में कुछ और। When did my next stanza? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and my alone? Was that the day? यहाँ पे फिर पोएट वापस इसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट डेलिब्रेट्स ऑन द सेम क्वेश्चन, बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं अपने आप से। व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कब उन्होंने अपने बचपने को खो दिया? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, अबाउट पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं कि कब उन्होंने अपने बचपने को खोया होगा। ही वंडर्स अबाउट द डे, आश्चर्य करते हैं, सोच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि दैट हिज माइंड वॉज हिज ओन एंड कुड यूज इट द वे ऑफ ही वॉन्ट्स। तब क्या उस समय जब उन्हें अपने अपने मस्तिष्क पे नियंत्रण करना आ गया, अपने विचारों को स्वतः अपने विचारों पे अमल करना, अपने विचारों को बनाना और करना आ गया। ही रियलाइज दैट हिज माइंड वॉज हिज ओन एंड कुड यूज इट इन द वे व्हाट ही वांट्स, जैसे वो चाहें वैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन ही रियलाइज दैट ही वुड प्रोड्यूस हिज ओन थॉट्स, अपने ही विचार को उत्पन्न कर सकते हैं, विच वर नॉट बाउंड ऑफ एनीवन, किसी और के दबाव में, प्रेशर में नहीं, अपने ही स्वतंत्र विचार बनाने की जब उनमें काबिलियत, क्षमता आई, क्या वो दिन वो था जब उन्होंने अपने बचपने को खो दिया? व्हेन ही सेंस्ड हिज ओन इंडिविजुअलिटी एंड सेपरेटेड पर्सनैलिटी, वॉज दैट द डे दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, क्या वो दिन वो था जब उन्होंने अपने बचपने को खो दिया? यहाँ पे पोएट बार बार अपने से प्रश्न कर रहे हैं कि कब मैंने अपने बचपने को खोया? क्या वो दिन था जब मैंने अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्ति करना सीख लिया? क्या वो दिन वो था जब मैंने अपने बचपने को खो दिया? फोर्थ एंड द लास्ट स्टैंजा, यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? Where did my childhood go? It went to some forgotten places that hidden in an infant's face, that's all I know. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? Infant यानी newborn baby. In the last stanza, the poet remorses about his lost childhood. He concludes that his childhood had gone to some forgotten places which will never come back. He cheers the innocence which vanished now and could be only seen in the baby's face. He only has sweet memories of his childhood which could not soon fade away. He also conveyed a message that the innocence of childhood stays till the time one is an infant, and that is all he knows. अब at last poet क्या कहते हैं कि उन्होंने ये मान लिया, समझ लिया कि वो दो
तरह की चीज़ें बताते हैं कि मेरा जो बचपना है कहीं ऐसी जगह चला गया जिसे हम वापस ढूंढ के नहीं ला सकते। और ये मान लिया उन्होंने कि वो जो इनोसेंसी है वो कहीं विलुप्त हो गई है, वैनिश हो गई है, उसे वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वो किस में पा रहे हैं? सिर्फ एक बच्चे के चेहरे पे वो इनोसेंसी उन्हें दिख रही है। और वो क्या कह रहे हैं कि ये जो स्वीट मेमोरीज़ हैं उनकी चाइल्डहुड की, वो फेड धुंधली हो गई है, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं, युवा हो गए हैं, वो तर्क करना सीख गए हैं, है ना, वो सब चीज़ों पे कंपैरिजन करना सीख गए हैं, अच्छा बुरा समझने लग गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब अगर उन्हें अपने बचपने को देखना है, इनोसेंसी ऑफ चाइल्डहुड उनको फिर लिव करना है, देखना है, तो वो किस में देखेंगे? एक बच्चे के चेहरे में। टिल टाइम व्हेन इज़ अ इन्फेंट एंड दैट इज़ ऑल आई नो। वो चाइल्डहुड तब तक ही रहता है जब तक वो इन्फेंट रहते हैं, उसके बाद वो कहीं दिखता नहीं। उसी इनोसेंसी को देखने के लिए हमें इन्फेंट के फेस पे वो इनोसेंसी दिखती है। वो इतना ही कहते हैं दैट इज़ ऑल आई नो, इतना ही उन्हें अब ये समझ में आया। दो तरह से यहाँ पे वो इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, होप आपको ये पोएट्री समझ में आई कि पोएट यहाँ पे हमें क्या कहना चाहते हैं। इसमें राइमिंग सीन्स ABBCCD यूज़ हुई है, रिफ्रेम यूज़ हुआ है, ग्रुप ऑफ फ्रेसेस यूज़ हुए हैं यहाँ पर। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज दैट द डे। और यहाँ पे रैशनलिज्म है, द पोएट रैशनलाइज द लॉस्ट चाइल्ड व्हेन ही वॉज 11 एंड व्हेन ही फाउंड आउट दैट द हेल एंड हेवन डिड नॉट एग्जिस्ट आर नॉट फाउंड इन द ज्योग्राफी। होप आपको ये पोएट्री समझ में आई होगी। ये पोएट जो डिलीवर करना चाहते थे कि ये जो चाइल्डहुड है वो कहीं गुम हो चुका है, सिर्फ वो इतना ही कहना चाहते हैं कि द टाइम है, टिल द टाइम वन इज़ एन इन्फेंट। अब बच्चे जब तक रहेंगे तब तक ही आपकी चाइल्डहुड आपको इनोसेंसी वो दिखने को मिलेगी, बाद में वो नहीं मिलेगी। यही पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं। ये लॉन्ग लॉस्ट मेमोरी है और कुछ नहीं। चाइल्डहुड इज़ नथिंग मोर देन अ लॉन्ग लॉस्ट मेमोरी। होप आपको ये पोएट्री समझ में आएगी। थैंक यू।